대직 띵야 안 돼요 왜? 럼바 실수와. 식사장 소리 띵야 되게. 시장주 둘러 삽주를 걸으시대. 엔딜 럼버스. 전스케가 왔다디. 지금 되게 삽dem을 띵야지. Tea Party, Birla House at Joshi. Nehru, not the Birla House of Johnny, Paji Nima. That's just Nisum's dying with you. Nehru, Miss Sivojle, Cheshi, Gilbert, and come to Pajitan not to a heavy. Channel Birla. No, go. Dawson, Madosuma, Dawshive. 你去哪个是啊？哦呀，对。好好，啥？Zerim Guba de Zamli Jaji Esos Rozo, Sene Tozo, Kusha Kutin Chola, Hojimne, Tuja Cheshu, Shakdashi, Chinor Konsa Kamko Shamboshon, Soze Yoman Yensen Shuju. Now we would like to appeal His Holiness to present a souvenir to Mr. Helmut Kutin for his lifelong service for the cause of humanity. Now, I would like to request Mr. Helmut Kutin to say a few words on this very important occasion. Your Holiness, the Dalai Lama, I'm very moved now seeing this beautiful picture of myself, which looks completely different from what I'm looking today. Sakya Rinpoche, the members of the host country, dignitaries of India, and particularly the members of the Kazakh who have come all the way to join here this beautiful festival. I think we have all been very pleased to see the march past and all the beautiful performances from all the children, and without being biased, I would like to say the best march past was SOS Tibetan Children's Village, Rishikesh. Why? Because they are the youngest, they are the smallest, they are the newest, and still they have done a fantastic job. On behalf of the worldwide SOS Children's Village family, I'm here today to present our thanks, appreciation, and our congratulations to the Tibetan Homes Foundation, who for 50 years, with a tremendous personal input, joy, love, and care, have taken care of the small boys, girls, of the Tibetan community. I am also very pleased to see a great number of sponsors and friends who have come here not only to share their money, but particularly to share their hearts and minds for the Tibetan children
And I think I dare to say in the name of all the sponsors and friends, it's fantastic children. If you look into these eyes and in those beautiful children, even some might be a little bit naughty at times, but they are so beautiful and they are worth being there for them. It is 35 years ago, a little more, that the founder and father of SOS Children's Villages, Helmut Minor, met His Holiness the Dalai Lama in Dharamsala, and I was the interpreter with beautiful long hair, no spikies yet, but still completely different from today. And we met in the most famous office I have ever seen in my life, and that was the office of the Tibetan Homes Foundation in Dharamsala, a wooden hut where Mrs. Pema Chetson was running all the sponsorships and all the work. And the founder of SOS Children's Villages, Helmut Minor, had this brilliant idea. I was only the translator. And it was very cold in this small office, but very warm from the Tibetan hospitality. And he asked me, please ask His Holiness if he would like a whiskey. So I was really stupid, I did this. And His Holiness started to laugh and said, first you drink Tibetan tea, and then we can talk about whiskey. And since then, we have always had a great joy to meet His Holiness and also to come to Mussoorie to see these outstanding good students who are doing a tremendous good job. And when we celebrate today, yes, it's also a celebration with a little heartbreak. You have found a home, away from home, and never give up the hope. And in your hearts and minds, always keep this spirit, always keep these feelings. I'm Tibetan, I belong to Tibet, and never, never ever give up the hope. You have all received help and assistance. You have all found a home here. And therefore I appeal to you on this great occasion of 50 years of Tibetan Homes Foundation, together with the SOS Children's Village Tibetan in Rishikesh, in Rajpur, and the small village here in Mussoorie. Never forget that there are still small brothers and sisters out there in the cold, without love, without care, without protection. And whenever you leave from here, go in this spirit. I will also reach out my hand. I will also share with my small brothers and sisters, and I will never forget my home country, because I carry it in my mind and in my heart. And that is stronger than any location. My thanks and appreciation to all the Amalas, to all the co-workers, to all the children who are doing good results, and to all those who are a little naughty, because they are part of life, and we shall be continuing in all future to be together in friendship with you. And to those who have known me 35 years ago, in the meantime I have been promoted. I've been promoted to grandfather of the SOS Children's Village family in 133 countries. And as grandfather, I have no more money in the pocket, but I have a great heart, and wherever I go, I will be taken care of by all these previous boys and girls from the Tibetan Homes Foundation. And I look forward to have a few good momos, not only today for lunch, but in all future. Congratulations, take care of each other. And I believe that the presence of His Holiness has incited everyone to work very hard to present this beautiful performance and the beautiful mass march, and with this enjoy being together, being a beautiful family. Tashitilek. Thank you very much, sir, Mr. Kutin. Now I would like to request Shri O.P. O'Neill
O.P. O'Neill, Chairman, Mussoorie City Board, to say a few words on this very occasion. धन्यवाद। मैं हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को प्रणाम करता हूँ कि आज इस टिबेटन होम्स के फाउंडेशन की स्वर्णिम जयंती पर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस उपलक्ष्य में हिज हॉलीनेस के दर्शन कर पाए। आज के इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी, माननीय विधायक श्री गणेश जोशी जी, एसओएस के अध्यक्ष श्री कुटिन जी, धर्मगुरु साक्या रिम्पोचे, जनरल सेक्रेटरी T.H.F, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी T.H.F, प्रधानाचार्य CST, आदरणीय सभी गुरुजन, पूर्व विधायक श्री जोत सिंह गुंसोला जी, सभासद श्री नंदलाल जी, पूर्व सभासद श्री मनोज अग्रवाल जी, सभी पुलिस के अधिकारीगण जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मेहनत वो लोग कर रहे हैं, सभी जवान, सभी T.H.F के बच्चे, श्री पंडित जी जो देहरादून से विधायक जी के साथ आए हैं, माननीय भाजपा के अध्यक्ष कटहत जी, श्री पेटवाल जी उपाध्यक्ष हैं, और प्रेस मीडिया, टेली मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी मेरे मित्रगण। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मसूरी के लिए कि ये मसूरी देवनगरी है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी भी है, जिसमें हमारे महान धर्मगुरु जितने भी हैं तकरीबन यहाँ पर अपना प्रवास कहीं ना कहीं वर्ष में करते हैं। और मैं हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नगर पालिका परिषद मसूरी का अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य है कि हम लोगों को आपके साथ दर्शन करने का मौका मिलता है। 1959 में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आपका प्रवास भारत में हुआ था, सभी टिबेटन समुदाय का मसूरी में आए थे, और मुझे उस वक्त का जो वाक़या मुझे बताया गया, क्योंकि जब पंडित नेहरू जी और यहाँ पर तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका श्री जगन्नाथ शर्मा जी हुआ करते थे, अभी भी हैं जो देहरादून में हैं, उनको स्पेशली जब हिज हॉलीनेस यहाँ मसूरी में आए थे तो उनके सहयोग के लिए पूर्ण रूप से नगर पालिका अध्यक्ष को ही कहा गया था। आप यहाँ पर करीब 1 वर्ष हैप्पी वैली में रहे, जो आज इनका हॉस्पिटल आपका टिबेटन समुदाय का यहाँ पर बना है, वहाँ कभी आपका प्रवास हुआ करता था, जो मुझे बताया गया है। आप यहाँ पर आके रहते थे। महान कवि संस्कृतन भी यहाँ पर रहे, जिन्होंने करीब धर्मगुरुओं के ऊपर 22 संग्रह लिखे, जो आज भी विद्यमान है। मैं हिज हॉलीनेस का तहे दिल से इस मसूरी में, मसूरी नगर पालिका और मसूरी की सभ्रांत जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि जिस तरीके से आपके दर्शन यहाँ हर वर्ष प्रत्येक वर्ष होते हैं, हम चाहते हैं कि आप प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 से 15 दिन का प्रवास, जैसे आप धर्मशाला में रहते हैं, ऐसे आप मसूरी में आकर भी रहें, तो हमारा सौभाग्य होगा। हमें आपके दर्शन करके अनुग्रहित होंगे। मैं सभी बच्चों का, टिबेटन होम्स का, आज जिस तरीके से टिबेटन होम्स के बच्चे यहाँ पर हैं और जो प्यार मोहब्बत आज हमारा और टिबेटन्स का यहाँ पर है, ऐसा लगता है हम एक ही परिवार के लोग हैं। इतने सुंदर, इतना अच्छा सुशील, इतना अनुशासन आपके अंदर है। जब भी नगर पालिका
कोई ऑक्शन, कोई समारोह करती है या फेस्टिवल करती है, उसमें किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आप टिबेटन समुदाय का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भविष्य में भी, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, पर भविष्य में हम मसूरी में जो टिबेटन समुदाय रहता है, हम आपके बिना रहने का कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इतने, हम परिवार के साथ हम लोग इस तरीके से जुड़ चुके हैं। मेरे घर में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर भी मेरे 2 टिबेटन परिवार मेरे पड़ोस में रहते हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे माता पिता मेरे साथ रह रहे हैं। दे गिविंग सच ए लव टू अस। मैं आप सबका ज़्यादा न कह के सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी यहाँ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जिनके मैं नाम नहीं जानता, जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप बच्चों का, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम किया है, बहुत सुंदर प्रोग्राम किया है, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे 4 मिनट दिए गए हैं और मैं समझता हूँ 4 मिनट पूरे हो गए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए हिज होलीनेस से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर अनुरोध करता हूँ एक बार कि आप ज़रूर वर्ष में 10 से 15 दिन के लिए प्रवास के लिए मसूरी ज़रूर आएंगे। हमारा बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। साथ ही सभी जो अधिकारी, जो नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी, नगर प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जिन्होंने इतना बहुत मेहनत इस शहर में की है, आपके आने पे, स्वागत पे मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। Thank you very much, Shri Unyal ji. Now I would like to request Shri Ganesh Joshi ji, MLA, to say a few words on this very occasion. तिब्बतन होम फाउंडेशन के स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हिज होलीनेस दलाई लामा जी, नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष मेरे अनुज ओपी उनियाल जी, श्री कुटीन एसओएस अध्यक्ष ऑस्ट्रिया, धर्मगुरु शाक्या रिपुचे जी, जनरल सेक्रेटरी T.H.F, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी T.H.F, प्रधानाचार्य CST, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई जिनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ से विधायक बनने का मौका मिला, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय ज्योति सिंह गुंसोला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रूप सिंह कटहैत जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष मोहन पेटवाल जी, दीपक पुंडीर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वर्तमान व पूर्व सभासदगण, अन्य अधिकारीगण, समस्त गुरुजन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। किसी भी संस्थान के लिए बड़े गौरव की बात होती है कि आज इस संस्थान को 50 वर्ष पूरे हुए हैं, और उससे सौभाग्य की बात यह है कि आज हमें आशीर्वाद देने के लिए हिज होलीनेस दलाई लामा जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका वंदन करता हूं, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते अभिनंदन करता हूं। अभी जब बच्चे मार्च पास कर रहे थे, क्योंकि मैं फौज में रहा हूं,
मार्च पास्ट देखकर मुझे अपने फौज के दिनों की याद आ गई। लग रहा था कि जिस प्रकार एक फौजी अपना इतना अनुशासन, ऐसा ड्रिल मैंने फौज में भी नहीं देखा। इसलिए और जब बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए, हालांकि ये भाषा तो नहीं समझ रहा था, लेकिन आपके संगीत की धुन पर, आपके कदमों की ताल पर खुद भी नाचने का मन कर रहा था। इतना सुंदर प्रस्तुति आपने यहां पर दी। और कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा जो है दिमाग का प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब जो दृश्य आपने यहां पर दिखाया सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, ड्रिल के माध्यम से, उससे ये प्रतीत होता है कि यहां पर कितनी अच्छी पढ़ाई इस विद्यालय के अंदर होती है। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अभी मैं एक सुंदर का जब आपने विमोचन किया, मैं उसको देख रहा था कि 50 साल पूर्व जब इसकी यहाँ पर स्थापना हुई, इसके फाउंडर चेयरमैन दलाई लामा जी, नेहरू जी को भी देख रहा था। तो हमारे मसूरी वालों के लिए गौरव की बात है कि संस्थान यहाँ पर चल रहा है, और जहाँ यहाँ पर आपके बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ हमारे बच्चों के लिए भी आपने कोटा फिक्स किया है, और वो भी यहाँ पर अच्छी शिक्षा यहाँ पर ले रहे हैं। उसके लिए मैं संस्थान का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र राजपुर में भी एक बहुत बड़ा स्टेशन आपका है, और अक्सर आपके जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, एक दिवाली भी होती है आपके यहाँ, मुझे जाने का मौका मिलता है। हमारी संस्कृति जो पहाड़ की संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति और आपकी संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। वेशभूषा में भी कोई खास अंतर नहीं है, बहुत मिलती जुलती है। और अब तो आप, अभी मैं जोड़ने से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग होंगे, कहने के 1 लाख से अधिक लोग हैं। मुझे धर्मशाला में जाने का मौका मिला, और मुझे एक बार याद है, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत लोग आपके हैं, और एक व्यवसाय जो ऊन का वगैरह होता है ये लोग करते थे। तो एक बार मैं जोधपुर में था, आर्मी की बात है 78 की, तो वहाँ पर जब मैं बाजार में गया तो वहाँ पर अपने जो तिब्बती समुदाय के लोग, उन्होंने दुकान लगा रखी थी। तो अचानक वो जब उन्होंने मुझे देखा तो पूछने लगे कि आप कहाँ के हैं, तो मैंने कहा मैं देहरादून का हूँ। तो भाई और बहनों, आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ इतना प्यार हो गया हमारा उनसे कि जब भी हम बाजार जाते थे वो हमसे मिलते थे। फिर एक बार हमारी वहाँ के जितने भी लोग थे इकट्ठे होकर मेरी यूनिट में, वहाँ पर जोधपुर में हम जहाँ पर रहते थे, हमसे मिलने आए। और आज भी तो बहुत टाइम हो गया है, तो अभी करीब 3 साल पूर्व जो जब मुझे मिले, गांधी पार्क के पास की बात है, उन्होंने मुझे पहचान लिया। जोशी जी, आप तो बहुत मोटे हो गए, पहले आप बिल्कुल पतले से थे और इस प्रकार के थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपस में जब मिलते जुलते हैं इतना प्यार हो जाता है। अब तो आप यहीं के बासिंदे हैं, हमारे एक अंग है। जब ये आपने देखा, जहां आपने अपने राष्ट्र का गीत गाया, उससे पहले राष्ट्रीय गीत आपने यहाँ पर गाया। इस अवसर पर एक बार इस संस्थान को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि संस्थान और आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करे। और विशेषकर हिज होलिनेस दलाई लामा जी का कि आप इस अवसर पर, आप स्वर्ण जयंती के अवसर पर यहाँ पर आए। और जैसा कि अभी उनियाल जी ने कहा कि आप जब भी, जिस प्रकार आप धर्मशाला में आपका समय अधिक होता है, तो यहाँ भी अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि धर्म गुरुओं के 2 वचन आदमी की दिशा को बदल देते हैं, आदमी की सोच को बदल देते हैं। इसलिए आपका आशीर्वाद का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।